আমাদের আন্তরিক সম্মান জ্ঞাপন করব। आज का कार्यक्रम जो था वो ओंकार ग्रुप के कॉन्क्लेव बिजनेस कॉन्क्लेव का कार्यक्रम था, जिसमें उपस्थित थी माननीय मंत्री अग्निमित्रा पाल और ओंकार ग्रुप के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, आधुनिक ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर, इन्फोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर, एसटीपीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर, पीएलएस ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर और भी कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम में ऐसे ऐसे लोगों को चुन के सम्मानित किया गया जो कि अपने क्षेत्र में बहुतायत रूप से अच्छे कार्य कर रहे हैं। বিবেকানন্দে যত বড় আমাদের ওখানে ক্ষেত্রীতে তৈরি করে রেখেছি, আমার মনে বাঙালির মতন भी এত বড় स्मारक नहीं। तो अगर আপনারা একটু প্রচেষ্টা করে আর রাজস্থান আর মারওয়াড়ি अगर बिकम ए फ्रेंडली स्टेट, ওখানে भी অনেক পরিচয় আছে আমার মনে হয় আমাদের কমিউনিটিকে भी ভালো লাগবে আর আমার কালচারাল ডেভেলপমেন্ট হবে খুব বড়। তো বিরাট কালচার মিলতে পারবে এক জায়গায়। আরো একটি বিশেষ দিন আজকে, আজ 22শে শ্রাবণ, আমাদের সকলের প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিনটিতে শান্তিনিকেতনে কিন্তু বৃক্ষরোপণের দাস ফাউন্ডার আমরা উত্তরীয় দ্বারা বরণ করে নেব মিস্টার নির্মল আগরওয়াল। আমরা তার হাতে তুলে দেব প্রকৃতির এক অমূল্য সম্পদ, বৃক্ষ চারা, মানি প্ল্যান্ট। একজন বিজনেসম্যান ওঙ্কার গ্রুপের তরফ থেকে মিস্টার প্রহ্লাদ রয় গোয়েঙ্কা অনুরোধ করব একটু এই মুহূর্তে এমডি অপিয়ারেন্স হোটেলস মিস্টার শ্রীমতী দেবশ্রী রয় সরকার, তিনি উত্তরীয় দ্বারা বরণ করলেন। পাশাপাশি মিস্টার নির্মল আগরওয়াল এবং সুন্দর একটি বৃক্ষ চারা দিয়ে তাকে আমরা সম্মান জানালাম। পাশাপাশি ওঙ্কার গ্রুপের চেয়ারম্যান মিস্টার প্রহ্লাদ রয় গোয়েঙ্কা, তিনি স্মারক সম্মান তুলে দিলেন। মিসেস I am small entrepreneur trying to bring jewelry worthwhile to all the girls and women in the city. It was my small little wish that we could bring affordable jewelry and fashionable jewelry to everyone. Pearls were not so important to anyone, but we had to educate them and bring them that pearls is one of the best and royal jewelry which anyone can wear. I can say that much only. Thank you so much. শ্রীমতী দেবশ্রী রয় সরকার। সৌমেন কোলে মহাশয়ের হাতে আমরা আমাদের তরফ থেকে এই স্মারক সম্মান তুলে দিতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত, আনন্দিত। অনুরোধ করব একটু এই মুহূর্তে এমডি অপিয়ারেন্স হোটেলস মিস্টার শ্রীমতী দেবশ্রী রয় সরকার, তিনি উত্তরীয় দ্বারা বরণ করলেন। পাশাপাশি মিস্টার নির্মল আগরওয়াল এবং সুন্দর একটি বৃক্ষ চারা দিয়ে তাকে আমরা সম্মান জানালাম। পাশাপাশি ওঙ্কার গ্রুপের চেয়ারম্যান মিস্টার প্রহ্লাদ রয় গোয়েঙ্কা, তিনি স্মারক সম্মান তুলে দিলেন। মিসেস I am small entrepreneur trying to bring jewelry worthwhile to all the girls and women in the city. It was my small little wish that we could bring affordable jewelry and fashionable jewelry to everyone. Pearls were not so important to anyone, but we had to educate them and bring them that pearls is one of the best and royal jewelry which anyone can wear. I can say that much only. Thank you so much.
সামনে শিশির রাডারের অফিসে ঢুকলে মনে হবে মহাকাশ কি সত্যি অধরা। আজকে ভারতে এই কর্মের বিস্তারের খুব বড় দরকার। তো আমি সেইভাবে ডিরেক্টর অফ পিয়ারলেস হোটেলস, আমরা অনুরোধ করব তার যোগ্য সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা। তিনি যেভাবে ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করেছেন তথা বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, তাতে তাকে এই সম্মান। শ্রীমতী দেবশ্রী রয়ের সরকার। সৌমেন কোলে মহাশয়ের হাতে আমরা আমাদের তরফ থেকে এই স্মারক সম্মান তুলে দিতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত, আনন্দিত। আমি হচ্ছি ভারতের সবচেয়ে বয়স্ক স্টার্ট আপ ফাউন্ডার। আর আমি বিভিন্ন সবাই ভাবে যে বয়স্ক পথে রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেলে শেষ, একটা আমার পিনাকলে পৌঁছানোর। We will allow India to become the backbone of the data centers of the world. And এর মধ্যে কোটি কোটি টাকা, मतलब in lakhs of crores of rupees, electricity and water. বেঙ্গল এটা সবাই মধ্যে খুব capable. সকলেই জানি একজন বৃক্ষচারা দ্বারা এবং উত্তরীয় দ্বারা বরণ করে নেওয়া হচ্ছে সম্মান জানানো রঞ্জিয়া ডিজিটাল। মোবাইল বায়োটয়লেট নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা কিন্তু করছেন তারা। দিচ্ছেন মাননীয় পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী, ম্যান অফ বেঙ্গল শ্রী প্রহ্লাদ সেন, বেস্ট ইন আরবান ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড আমরা সম্মানিত করলাম। তার হাতে তুলে দিচ্ছি একটি স্মারক সম্মান। Bangla to bring me here. I think all of us here have done something to bring us here, and I think this is just a beginning. অনেক দূর যেতে হবে। আমরা ছোট ছোট কিছু কাজ করতে শুরু করেছি সব জায়গাতে, and I think this is a time where Bengal can really occupy that position in the country which it deserves. They have got an entrepreneurial capacity. Like the Marwadis, we have come from the Rajasthan. যখন আমরা আমাদের কুটুম্বের লোককে ওখানে রাজস্থানে দেখি, দেয়ার কিন্তু অনেক সেই রকম আছে, কাজ করে না। এরকম বাঙালিটা আমরা অনেক দেখেছি চিত্তরঞ্জনে, দিল্লিতে, রায়পুরে, দে আর মোর ওয়ার্কিং। সো দ্য মোর লাইক ইউ সি দ্য ইস্ট বেঙ্গল পিপল, ওটা যখন ইস্ট বেঙ্গল ছোড়ে ওয়েস্ট বেঙ্গলে আসলো, আমরা দেখছি কি সো ইটস এ হিউম্যান কালচার। Correct. My question is this: whether these 5 decades of in Bengal. That is agree. আমি গোয়েঙ্কা স্যারের সঙ্গে এগ্রি করব স্যার। That is my question with you also, sir, to the panel. আমি সে টাইম বাচ্চাই ছিলাম মনে হয়, যে টাইম রাহুল গান্ধী was the Prime Minister of India and he started to start the IT in the Bengal. Rajiv Gandhi. And Jyoti Basu was in total against to start the IT. That is the reason all this center, Bangalore, Hyderabad, Chennai is developed. How we can, and I think that is the main reason why the Bangladesh got a bad gear in the development. Sir, that is a political thing. Political thing. It's my personal belief, I may be wrong, you are very senior to me. So, what we can do, the things will come back. I appreciate the idea of my son Gagan, that data center is a very big thing. If the cable connection from Singapore will come to Haldia, then the whole zone can develop. So, the problem we know, but what is our future roadmap? That also will be highlighted, it will be better for us. Thank you, sir. So
জাগরুক করা যায় যে তারা যাতে নিজের স্বাস্থ্য এবং হাইজিনটা সম্বন্ধে নিজেরাই জানতে পারে। যুগলবন্দি কি শুধু সঙ্গীতে ঘটে? মোটেই না, জীবনেও ঘটে। হাতে হাত মিলিয়ে মানুষের জন্য কাজ করে চলেছেন এ শহরের এক যুগল। সুস্বাস্থ্যের সচেতনতা গড়ে তুলতে শৌচাগারের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি শহরে গ্রামে ঘুরে বোঝাচ্ছেন তারা। শুধু কি তাই, অত্যাধুনিক মোবাইল বায়ো টয়লেট নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষাও চলছে। ইটস আ ভেরি অ্যাপ্ট টাইটেল, টয়লেট ম্যান অফ বেঙ্গল। এবং ডক্টর অরিজিৎ ব্যানার্জি আর তার স্ত্রী তথা সহযোদ্ধা অর্পিতা ব্যানার্জি एम्पावरिंग विमेन लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप के एक प्रोग्राम में ओंकार बांग्ला आयोजित एक समिट में आए थे और बहुत अच्छा लगा। बहुत जन को अवार्ड दिया गया। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ कितना इन्वेस्टमेंट आपको मिला है, शुरू करेंगे कि नहीं, सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, ये विषय नहीं है। और महिला एंटरप्रेन्योरशिप को तो हर टाइम हम लोग आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री हर विषय में महिला को आगे बढ़ाने का चेष्टा कर रहे हैं और आज भारत में हर जगह में महिला है। आज बॉर्डर में बोलिए, आज माउंट एवरेस्ट बोलिए, आज समुद्र के नीचे बोलिए, आज गेम्स के बोलिए और एंटरप्रेन्योरशिप में बोलिए, हर जगह महिला है। तो आज बहुत अच्छा लगा और हम महिला को यही बोलना चाहते हैं कि कितना आपका इन्वेस्टमेंट करने का क्षमता है, कितना पूंजी है, उसका चिंता मत कीजिए। आप जितना भी पूंजी है आप शुरू कर दीजिए और बहुत अच्छा होगा। आज का बच्चे लोग, आज के हमारे नया समाज, युवा समाज, हमारे यूथ अगर नौकरी का चेष्टा ना करके माननीय प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मुद्रा योजना, बहुत सारा ऐसी योजना है जो हम इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं, छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और सिर्फ अपना विषय में चिंता करने से नहीं होगा, हम अपने साथ और 10 जन महिला को साथ में लेंगे और उनको हम नौकरी देंगे। ये विजन होना चाहिए। तो धन्यवाद देना चाहते हैं ओंकार बांग्ला को आज इतना सुंदर एंटरप्रेन्योरशिप लेकर और स्पेशली विमेन एंटरप्रेन्योरशिप लेकर ये कार्यक्रम करने के लिए और मुझे आमंत्रण बोलने के लिए। का जो प्रोग्राम है और एक्सीलेंस अवार्ड है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? दरअसल में आपको पता है कि बंगाल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना है जिसके अंदर में जिस पार्टी का जन्म इस मट्टी से हुआ है वो पहली बार इस मट्टी पे पावर में आई है। तो इस समय हम लोग एक इस तरह का, किंतु जितने लोग आए हैं अधिकांश लोग पहली बार आए, चीज़ों के बारे में उतने अभिज्ञ नहीं है, पूरी चेष्टा कर रहे हैं। इन लोगों में ईमानदारी दिख रही है। तो हम लोग इनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जहाँ पे जो हम लोगों के जो लोगों ने विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की है उन लोगों का हम सम्मान करें, मंत्री लोगों से उन लोगों का इंटरेक्शन हो, उन लोगों की एक ज्वाइंट टीम बने और एक भविष्य का बंगाल निर्माण कर सके। इस स्वागत के लिए आपको क्या तैयारियां करनी पड़ी, ये भी दर्शकों को बताएं। तैयारी तो मैं धन्यवाद दूंगा अपनी ओंकार टीम को। उन्होंने इतनी मेहनत करके इतने विशिष्ट लोगों को खोजकर इस तरह से सब लोगों को बुलाकर ये जो कार्यक्रम का संयोजन किया है। बाकी तो आप स्वयं देखेंगे तो नहीं, आज किस किस को सम्मान दे रहे हैं, थोड़ी तो आप उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। देखिए, विभिन्न विभूतियाँ हैं अपने अपने क्षेत्र में। रविंद्र जी चमड़िया जी भी हैं, अच्छा, आपके उद्योग में भी हैं, आपके आर्किटेक्ट में भी हैं, आपके समाज सेवा में भी हैं। तो उन लोगों को जिनको कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समाज का भला कर सकते हैं, उस तरह के लोग। तो आज जो मंत्री आ रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो उनके बारे में कुछ कहने का नहीं है। वो तो 2 साल या 5 साल बाद में समीक्षा की जाएगी कि क्या कहा जाए। अभी तो खाली आशाएं हैं, उम्मीद है और हम लोग का एक विश्वास भी है कि वो विकसित बंगाल के भागीदार बनेंगे। आप दर्शकों को बिजनेस की कोई ट्रिप देना चाहेंगे जिससे कि आने वाली युवा पीढ़ी या जो युवा पीढ़ी है उनको इस ट्रिप के जरिए कोई फ़ायदा हो सके? देखिए, जहाँ तक व्यापारी का सवाल है उसका आधार है ईमानदारी। आजकल लोग कुछ चंद
फायदे के लिए उस चीज़ को त्याग देते हैं। लेकिन अगर आपको लंबी रोज का घोड़ा बनना है, जैसे हम लोग 105 वर्ष से हैं, आपको डेड ऑनेस्ट होना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ समय विशेष में आपको नुकसान हो, लेकिन लंबे समय में आपको हमेशा आपकी उन्नति होगी, आपका परिवार भी सुखी रहेगा, बच्चे भी सुखी रहेंगे। आपका नाम और डेजिग्नेशन? प्रहलाद राय गोयनका, चेयरमैन ओंकार। का जो प्रोग्राम है और एक्सीलेंस अवार्ड है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? दरअसल में आपको पता है कि बंगाल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना है, जिसके अंदर में जिस पार्टी का जन्म इस मिट्टी से हुआ है, वो पहली बार इस मिट्टी पे पावर में आई है। तो इस समय हम लोग एक इस तरह का, किंतु जितने लोग आए हैं, अधिकांश लोग पहली बार आए, चीज़ों के बारे में उतने अभिज्ञ नहीं है, पूरी चेष्टा कर रहे हैं, इन लोगों में ईमानदारी दिख रही है। तो हम लोग इनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, जहाँ पे जो हम लोगों के जो लोगों ने विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की है, उन लोगों का हम सम्मान करें, मंत्री लोगों से उन लोगों का इंटरेक्शन हो, उन लोगों की एक ज्वाइंट टीम बने और एक भविष्य का बंगाल निर्माण कर सके। इस स्वागत के लिए आपको क्या तैयारियां करनी पड़ी, ये भी दर्शकों को बताएं। यारी तो मैं धन्यवाद दूंगा अपनी ओंकार टीम को। उन्होंने इतनी मेहनत करके इतने विशिष्ट लोगों को खोजकर इस तरह से सब लोगों को बुलाकर ये जो कार्यक्रम का संयोजन किया है। बाकी तो आप स्वयं देखेंगे तो नहीं, आज किस किस को सम्मान दे रहे हैं, थोड़ी तो आप उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। देखिए, विभिन्न विभूतियाँ हैं अपने अपने क्षेत्र में। रविंद्र जी चमड़िया जी भी हैं, अच्छा, आपके उद्योग में भी है, आपके आर्किटेक्ट में भी है, आपके समाज सेवा में भी है। तो उन लोगों को जिनको कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समाज का भला कर सकते हैं, उस तरह के लोग। तो आज जो मंत्री आ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो उनके बारे में कुछ कहने का नहीं है। वो तो 2 साल या 5 साल बाद में समीक्षा की जाएगी कि क्या कहा जाए। अभी तो खाली आशाएं हैं, उम्मीद है, और हम लोग का एक विश्वास भी है कि वो विकसित बंगाल के भागीदार बनेंगे। आप दर्शकों को बिजनेस की कोई ट्रिप देना चाहेंगे, जिससे कि आने वाली युवा पीढ़ी या जो युवा पीढ़ी है, उनको इस ट्रिप के जरिए कोई फ़ायदा हो सके? देखिए, जहाँ तक व्यापारी का सवाल है, उसका आधार है ईमानदारी। आजकल लोग कुछ चंद फायदे के लिए उस चीज़ को त्याग देते हैं। लेकिन अगर आपको लंबी रोज का घोड़ा बनना है, जैसे हम लोग 105 वर्ष से हैं, आपको डेड ऑनेस्ट होना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ समय विशेष में आपको नुकसान हो, लेकिन लंबे समय में आपको हमेशा आपकी उन्नति होगी, आपका परिवार भी सुखी रहेगा, बच्चे भी सुखी रहेंगे। आपका नाम और डेजिग्नेशन? प्रहलाद राय गोयनका, चेयरमैन ओंकार। आज ये ओंकार द्वारा जो पावर कॉन्क्लेव किया जा रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, स्पेस वर्दी। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो ये बोल सकता हूँ कि इनिशिएटिव अच्छा है, एंड इस टाइप का प्रोग्राम जो होता है उससे एक अवेयरनेस आती है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड। नहीं, तो ये बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड जो दिया जा रहा है, इसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, इट्स इनकरेज पीपल, यू नो, इसके अवार्ड मिलने से एक इंकरेजमेंट तो होता ही है। इन अवार्ड मिलने से लोगों में एक इंकरेजमेंट आता है, एक एप्रिसिएशन होता है, तो यू नो झील चल जाती है। और कुछ आप संदेश देना चाहेंगे बिजनेस के लिए? बच्चों को कोई टिप देना चाहेंगे? नहीं, एज पर द यंगर जनरेशन इज कंसर्न, आई वुड से कि बिजनेस करिए, क्रिएट जॉब, बी एंटरप्रेन्योर, टेक रिस्क, हार्ड वर्क, कुछ रिस्क लीजिए थोड़ा बहुत, एंड इट्स वर्थ इट, यू नो, एंड डटे रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र चमड़िया। और आप क्या करते हैं? मेरा IT इन्फोटेक पार्क का मैं चेयरमैन हूँ। हम लोग IT इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।